वंदे मातरम की रचना जब की गई थी, हम लोग गुलाम थे और इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि गुलामी की जो अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उनके खिलाफ पूरे देशवासियों को एकजुट करना, उनको जागरूक करना। इसका अस्तित्व आज़ादी से खत्म नहीं जाती है। इसका रेलेवेंस इट्स स्टिल एज़ रेलेवेंट टुडे एज़ इट वाज़ इन द 1900 और इन 1886 व्हेन इट वाज़ फर्स्ट sang बाय गुरुदेव। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका जो सपना है विकसित भारत का सपना, ठीक है? अभी उन्होंने पंच प्राण की भी बात की, जिसमें पहला जो प्राण है वो है विकसित भारत, इसको अमृत काल कहा गया है। नो अदर प्राइम मिनिस्टर has given the country so much of hope in terms of our military strength, in terms of our national security, as it is Prime Minister Modi. और उसका एक झलक आपने ऑपरेशन सिंधु में देखा। 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए हम लोग, ठीक है? आज पूरी दुनिया भारत की जो सामरिक शक्ति है, उसकी दाद दे रही है। मैं हिज होलीनेस दलाई लामा जी का फॉलोअर भी हूँ। ये मानता हूँ मैं कि तिब्बत ही हमारा नेबरिंग कंट्री है। तिब्बत और इंडिया का ही बॉर्डर है, बॉर्डर चाइना के साथ नहीं है। Namaste, welcome to Sangam Talks, and we are very pleased to have with us Sri Sujit Kumar ji. Namaste, sir. नमस्कार दास। And we have this great pleasure to have him and here in his residence. So I will give a very brief introduction of him, and he doesn't require any introduction. He is an honorable MP of Rajya Sabha, representing the beautiful state of Odisha, and a lawyer specialized in the areas of technology, laws, IP, arbitration, environment, commercial and constitutional laws. That's very important thing. This is the second tenure of his membership. During his first term in Rajya Sabha, he was the chairman of the Petitions Committee, becoming one of the youngest MPs to head the parliamentary committee. He is the member of various parliamentary committee and statutory bodies. An engineer turned lawyer, he had an BTech degree, also LLB. Sri Kumarji is currently practicing law at Supreme Court of India, various high courts and tribunals. He is the founder and managing partner of Lex Mantra LLP, a boutique law firm. Previously, he worked at the World Economic Forum in Geneva, Switzerland, and for United Nations Development Program, and for Infosys Technologies Limited in India. He studied for the mid-career Master in Public Administration at the prestigious Harvard Kennedy School, Harvard University. He also has an MBA degree from Said Business School, University of Oxford. Having the distinction of receiving the inaugural Call Scholarship there, he also holds 2 bachelor degree. As I said before, he is a BTech and he's got an LLB degree. So he is one of the loudest voice in alignment with the vision of our honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and his passion is about tribal welfare and child rights. He has led several transformative initiatives in Odisha, including the child-friendly constituency model, and also previously served in senior roles, advisory roles, including advisor to the Special Development Council and Special Secretary of State Planning Board for the state of Odisha. So that's just a brief, sir, and you have a lot of feathers on your hat. So, sir, we will talk about today, as you have we are pleased to hear from you that this year is the 150 anniversary of the adaptation of Vande Mataram, and Honorable Prime Minister Narendra Modi ji he's already begun to give the speech on Parliament of India. So, and you are one of the visionary young leaders from Bharatiya Janata Party. So, what is your take on it? सुप्रभात देवाशीष जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। संगम टॉक आज पूरे देश में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी जो महान जो ऐतिह्य है उसको दिखाता है। तो मैं बहुत अपने आप को
गर्वित महसूस कर रहा हूँ It's कि a संगम great टॉक्स pleasure for us, sir. में मेरे को बातचीत करने का आपने मौका दिया। और मैं सौभाग्यशील हूँ कि जो 150 जयंती वंदे मातरम की रचना की, जो महान संगीत की रचना की जो 150तम जयंती हम लोग मना रहे हैं, और संसद में 2 दिन लग के इसके ऊपर चर्चा हो रहा है, उसी समय मैं संसद का सदस्य हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की विषय है। और देखिए, सबसे पहले तो देश की जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको कोटि-कोटि नमन पूरे देशवासियों की तरफ से कि जो कांग्रेस ने वंदे मातरम को ज़मीन तले दबा दिया था, जो महान क्रांतिकारी संगीत, ये केवल एक संगीत नहीं है, ये देश की आत्मा है। 150 साल से ये देश की आत्मा कहना कोई गलत नहीं होगा। उसको आज पूरी देश 140 करोड़ देशवासियों के सामने ला के उसको जीवंत किया है नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसके लिए मैं पूरे देशवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद दूँगा। और प्रधानमंत्री जी ने, आप उनका कल लोकसभा में उनका जो भाषण भी आप सुना होगा कि कैसे 1875 में उन्होंने लिखा, 1882 में ये आनंद मठ उनकी जो रचना थी, उसमें ये शामिल हुआ। और 1896 में गुरुदेव ने इसको पहली बार इसको जो कांग्रेस की सेशन में ये इसकी गान की थी। तब से लेके 1947 तक कैसे पूरे देशवासियों को ये एक प्रेरणा का स्रोत रहा है, इसका जिक्र किया। और कैसे उन्होंने कई सारे उदाहरण, ये सारे देशवासियों को जानना चाहिए। देशवासियों को जानना चाहिए कि कांग्रेस की असलियत क्या है, उसका चरित्र और चेहरा क्या है। तो वंदे मातरम, आज हमको जो एक मौका मिला है बंकिम बाबू की इस महान रचना को आज याद करने को, इसको नमन करने का समय मिला है, तो ये सब विचार आज सामने आ रहा है। सर, करंट सिचुएशन ये है कि हम लोग बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कभी कभी, जो मिस इन्फॉर्मेशन जाता है कि हम लोग, जब आप डेवलपमेंट के एडवाइजरी रह चुके हैं कि यंग लीडर की तरह, और आप बहुत मोर देन 800 डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मोर देन 400 जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस हैं वो पार्लियामेंट में आप रेज कर चुके हैं। तो आप जो यंग ग्रुप से आते हैं, आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट के रिलेटेड ना हो के भी जो हम लोग का जो आत्मसम्मान बोध है, वो क्या रेज करने के लिए, या फिर कोई और विजन है, जो विजन 2047 हम लोग जानते हैं, उसके ऊपर आपको क्या, मतलब क्या सोचते देखिए, हैं आप? ये सच है कि जो वंदे मातरम की रचना जब की गई थी, हम लोग गुलाम थे, और इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि गुलामी की जो अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उनके खिलाफ पूरे देशवासियों को एकजुट करना, उनको जागरूक करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इसका अस्तित्व आज़ादी से खत्म नहीं जाती है। इसका रेलिवेंस इट्स स्टिल एज रेलिवेंट टुडे as it was in the 1900 or in 1886 when it was first sang by Gurudev. देखिए, भारत वंदे मातरम, ओके, आई एम बाउंड टू मदर इंडिया, माँ भारती के चरणों में मैं अपना नमन कर रहा हूँ। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका जो सपना है विकसित भारत का सपना, ठीक है, अभी उन्होंने पंच प्राण की भी बात की, जिसमें पहला जो पंच प्राण में जो पहला सबसे प्राण है वो है विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत, वर्किंग टुवर्ड्स इट डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। और ये जो 25 साल का जो काल, उन्होंने जब ये आह्वान दिया था पूरे देशवासियों को कि हम लोग विकसित भारत की तरह काम करेंगे अगले 25 साल, इसको अमृत काल कह रहे हैं हम लोग। और तो ये जो वंदे मातरम का जो प्रेरणा, ये प्रधानमंत्री जी को और पूरे देशवासियों को हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत की तरह लेके जा रहा है। देखिए, वंदे मातरम जो गान में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के बारे में वहाँ पे जिक्र है। माँ दुर्गा शक्ति, अब ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए, आज हम लोग को 1962 में बुरी तरह चाइना ने हमको पराजित किया था, और हमको वी वर ह्यूमिलेटेड, ओके। उसके बाद हमने अपना आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत करना शुरू किया, लेकिन नो अदर प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन द कंट्री सो मच ऑफ होप in terms of our military strength, in terms of our national security, as it is Prime Minister मोदी। और उसका एक झलक आपने ऑपरेशन सिंधु में देखा, 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए हम लोग। ठीक है, आज पूरी दुनिया भारत की जो सामरिक शक्ति है उसकी दाद दे रही है। ठीक है,
डिफेंस हम लोग ऑलमोस्ट 90% हमारा जो डिफेंस प्रोडक्ट्स था वो हम लोग बाहर से मंगाते थे, खासकर रशिया से, इजराइल से, खासकर। आज वो घट के 30% हो गया। 70% हमारा जो डिफेंस नीड्स देश में ही हो रहा, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो जो शक्ति स्वरूपनी माँ, वो आज हम लोग देख रहे हैं अपना, अपने देश एक मजबूत स्ट्रेंथ। मदर इंडिया इज टुडे स्ट्रांग। लक्ष्मी का बात कीजिए, देखिए आज हम लोग, जब हम लोग 1947 में हम लोग इतने गरीब देश थे, आप जानते हैं 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। ठीक है, वी डिडंट हैव मनी फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग। टुडे वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट, एंड सून टू बिकम द थर्ड Soon to लार्जेस्ट, become third. सून टू बिकम थर्ड। आज $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई है। ठीक है, आज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी ये तिमाही का आया था जीडीपी ग्रोथ रेट 8.25%। ठीक है, और पिछले साल हम लोग 7% लगभग। And तो we can see that thinkers all over the world are recognizing that. ये लक्ष्मी स्वरूपनी माँ। ठीक है, तो भारत माँ आज हम वैभव, अपना जो पुराना वैभव था, ठीक है, हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हम लोग थे। ठीक है, जब अंग्रेज हम लोग आए तो दुनिया का 25% जीडीपी भारत में था, और सोने की चिड़िया कहते थे हमारे देश को। वहीं से लेके फिर हम गरीबी में चले गए। 1000 साल की जो गुलामी, और फिर अंग्रेजों की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने किया, तो उसके चलते हम लोग गुलाम बन के गरीब बन गए। अब वही हमारी पुरानी वैभव आ रही है। लक्ष्मी माँ हम पे फिर से जो भारत माँ, माँ भारती की वो जो आशीर्वाद कर रही है, और सरस्वती। ये देश, ये मिट्टी, ये राष्ट्र 1000 सालों से पूरी दुनिया को राह दिखा रही थी। ठीक है, पिछले 1000 साल हम लोग चले गए, गुलाम बन गए, तो हमारा जो नॉलेज सिस्टम था वो खत्म हो गया। लेकिन आज फिर हम विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भारत, इंडिया विल बी द बीकॉन ऑफ नॉलेज एंड विजडम एंड होप फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट विल बिकम ए विश्व गुरु, तो यही है। तो वंदे मातरम का देखिए कल्पना, वो इट्स एज रिलेवेंट टुडे एज इट वाज in 1875 when it was written, or in 1882 when it was incorporated into Anand Math, or 1896 when it was first sang, और 1905, 1907, 1909, आप जब भी लीजिए, वहाँ उस समय में जितनी इसकी ये थी रेलिवेंस थी, आज भी उतनी इसकी रेलिवेंस है। वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर। सो आप जैसे कह रहे थे कि 1961 का चाइनीज वॉर, लेकिन 62 भारत 1962 द इंडो चाइना वॉर, बट मुझे लगता है कि हम लोग शायद ह्यूमिलिएट नहीं हुए थे, क्योंकि भारत माता की संतानें इतने कमज़ोर नहीं है, बस इक्विपमेंट के हम लोग का कमी हो गया है। वो उसका अलग रीज़न है, वो हम लोग डिस्कस नहीं करते इसमें। हाँ, मैं जस्ट इस पे बोलना चाहूँगा। मैं ये, उसका मेरा संदर्भ कहने का मतलब ये था कि हम लोग इतने अनप्रिपेयर्ड थे। ठीक है, हमारी जो सेना, वीर सेना, मैं अपने सेना को दाद देता हूँ कि उनके पास ना जूते थे, ना वार्म क्लॉथिंग्स थे, ना हथियार थे, लट्ठी लेके फिर भी चाइना के साथ उन्होंने जो टेरन में युद्ध किया और अपने बलिदान दिया। मतलब एक भारतीय जो जवान 10-10 चाइनीज चीनों के जवानों पे भारी पड़ गया था। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी, अनप्रिपेयर्ड थे, इंटेलिजेंस नहीं थी, तो ये तो उस समय की जो सरकार, पंडित नेहरू की जो सरकार, उनकी आलोचना मैं कर रहा हूँ कि वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से इतने वो बह गए, और मतलब ये एक दिन में नहीं हुआ, 10 साल से चाइना तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो 1950 से सरदार पटेल जी का एक लेटर है, नवंबर 7, 1950 को उन्होंने लिखा था पंडित नेहरू को कि चाइना का जो गलत नज़र है तिब्बत पे और भारत पे, इस पे हम लोग को होशियार होना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू वो अपनी दुनिया में रहते थे, और जो कश्मीर में उन्होंने जो एक बहुत ही गंदा जो माहौल उन्होंने किया, चाइना में जो तिब्बत बॉर्डर पे भी वही सेम चीज़ हम लोग देखने को मिला। तो उसी संदर्भ में मैंने ये कहा। तो ह्यूमिलेशन वाज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ नेहरू। ठीक है, not because our armed forces were weak or we were cowards or anything, नाज है मैं अपनी सेना पे कि इतनी रिसोर्स नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने चाइना को जो टक्कर दिया। तो अब देखिए, अब गलवान में हम लोग देखे, अभी देखे, उसके बाद। सर, you are also an expert on Tibet. You are one of the founding member of International Parliamentary
committee on Tibet. जी, मैं एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को रुचि है काफ़ी तिब्बत विषय पे, और मैं हिज होलीनेस दलाई लामा जी का फॉलोअर भी हूँ, और ये मानता हूँ मैं कि तिब्बत ही हमारा नेबरिंग कंट्री है। तिब्बत और इंडिया का ही बॉर्डर है, बॉर्डर चाइना के साथ नहीं है। चाइना के साथ। तिब्बत इज़ एन ऑक्यूपाइड कंट्री, और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है वो कभी मतलब इट हैज़ नेवर बीन सीन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो उसके चलते जो आपके जो वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यूज के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स करके उनके जो जुल्म होता है, 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड, उससे भी ज़्यादा जुल्म हो रहा है तिब्बतन्स के ऊपर आज तिब्बत में। तो ये सब विषय पे मैं रुचि रखता हूँ, और मैं इसको दुनिया के सामने लाने का कोशिश करता हूँ, पार्लियामेंट के तहत और पार्लियामेंट के बाहर भी। Great, sir. Sir, as a BTech, you are also, very talented person about the AI and how AI should be implemented in India. So, I want to tell the viewers that Sir also have co-written in a book which is called AI on Trial. Sir, maybe some later time we will talk about this book जी, as बिल्कुल, well. बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ. एआई की दुनिया है ये, तो एआई के ऊपर बिल्कुल कभी चर्चा करते हैं देवाशीष जी। You talk about Vande Mataram and 150. We are celebrating the 150 anniversary of Vande Mataram. So there are some values, as you nicely explained, that there are some values which reflects the ancient, the knowledge system of India. Can you relate something from that song, the historicity of the song, the historic values it convey to the people of India? जी, देखिए वंदे मातरम मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि आई बाउ टू मदर इंडिया, माँ भारती के चरणों में मैं अपना नमन कर रहा हूँ, सर झुका रहा हूँ। तो जो माँ मातृभूमि, इसका जिक्र और इसका सम्मान और इनकी पूजन करना हमारे शास्त्रों से लेके, हमारी जो पुराने ग्रंथों से लेके प्राचीन भारत से ही इसकी प्रचलन है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा जो आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 उन्होंने पीठ देश के चारों कोने में उन्होंने जो प्रतिष्ठा की थी, सिंगेरी में शारदा पीठ, ठीक है, उन्होंने शारदा पीठ की प्रतिष्ठा की थी। फिर आप देखिए जी, जोशीमठ. नहीं मतलब बाकी जगह तो की थी, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो शक्ति की उपासना, शक्ति की जो पूजा अर्चना की ये प्रथा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जी, माँ भवानी की उनकी जिक्र करते हैं, और वहीं से लेके नरेंद्र मोदी जी माँ भारती की हमेशा बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो मातृ रूपी जो शक्ति है, इनकी पूजा वेदों में इनकी जिक्र है, और हमारे सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में इसकी जिक्र है। तो अभी जैसे प्रधानमंत्री जी का आप देखिए पूरे 11 साल का जो कार्यकाल है, तो महिलाओं के लिए, माताओं के लिए उन्होंने जो काम किया है, आप मातृशक्ति वंदना अधिनियम ले लीजिए, या फिर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ ले लीजिए, उज्ज्वला जहाँ पे 11 करोड़ माताओं के लिए बनाया गया है, या फिर जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने जो हाउस होल्ड टॉयलेट्स, जिसको इज्जत घर का दर्जा दिया उन्होंने, तो ऐसे मतलब कई सारे योजनाएं देखेंगे। मुद्रा लोन में जितने लोन्स सैंक्शन हुए उसका लगभग 65% माताओं को गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 75% घर माताओं को ही मिला है। तो अनगिनत ऐसी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी का जो माताओं के लिए है, क्योंकि मातृशक्ति जब सशक्त होगी तो देश अपने आप सशक्त होगा। तो ये मैं मानता हूँ पहले प्रधानमंत्री ये हैं जो मातृशक्ति का जो विमेन एम्पावरमेंट, लखपति दीदी लिखी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का सपना रखा है प्रधानमंत्री जी ने। ड्रोन दीदी, किसी ने सोचा नहीं था कि हमारी बहनें, हमारी माताएं भी ड्रोन सीख सकती हैं और उसको ड्रोन चला सकती हैं, ठीक है। अपने आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन बैटालियन हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे मातृशक्ति को प्राथमिकता दी है प्रधानमंत्री जी ने। ऑपरेशन सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर में देखिए हमारी जो 2 बहनें, हमारी जो आके स्पोक्स पर्सन, वो आके पूरी दुनिया को हमारी जो शक्ति के बारे में बता रहे थे, हमारी जो सफलता के बारे में बता रहे थे। तो यही है भारत की मूल यही है, ठीक है। तो वहीं से लेके और उसी का जिक्र ये वंदे मातरम में है। मैंने पहले भी कहा था कि दुर्गा,
लक्ष्मी सरस्वती की वंदना और उनको भारत माता के साथ उनको तुलना किया गया है। तो यही तो भारत माता एक जो जैसे कहते हैं जन्म जन्मभूमि माँ मिट्टी और मातृभाषा, ये तीन ही जो एक तो हमको माँ जननी जो हमको पैदा करती है, मातृभूमि जहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं और मातृभाषा अपनी भाषा, तो ये तीन चीज ही स्वर्ग से भी बड़ा है। ठीक है, जब एक जो कल प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया कि जब लंका जीतने के बाद, रावण को हराने के बाद विभीषण कहते हैं कि ये पूरी लंका आपकी है प्रभु, ये पूरी लंका आपकी है, आप यहाँ पे राजा बन के रहिए। तो वो क्या कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मेरे को अयोध्या ही मेरी मातृभूमि है, मैं वहीं पे जाके मैं रहूंगा। तो यही हमारी फिलॉसफी है, जो दिस इज आवर फिलॉसफी, दिस इज व्हाट इंडिया टीचेस टू द वर्ल्ड। And India also teaches that there is no difference between the communities, so called that we begin to believe because of our education system, because our political narrative, that the tribals are little bit different than the other communities of India. But you are coming from Kalahandi tribal belt and you also worked on tribal welfare there. So is there anything you want to talk about that part? देखिए, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को है हम लोगों को अपने जो जनजाति समाज से। और ये भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे आदिवासी जनजाति भाई हैं, भाई बहनें हैं, ये दुनिया के सबसे पहले शिक्षक हैं, सबसे पहले वैज्ञानिक हैं, सबसे पहले इंजीनियर हैं, सबसे पहले डॉक्टर हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास जो इनकी जो हजारों साल पुरानी जो ज्ञान परंपरा है, तो वही जंगलों में रह के वही अपने चिकित्सा करते थे, वही अपनी बांध बनाते थे, रास्ते बनाते थे, वहीं पे अपने सारी उनको कौशल विद्या उनको पता था और वहाँ उनसे बहुत कुछ सीखने को। और कला संस्कृति परंपरा तो अद्वितीय है उनका। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को। देखिए, नवंबर 16 जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है, उसको जनजाति गौरव दिवस कितने सारे प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था। और उनसे पहले अटल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फर्स्ट टाइम इन 1998 he created a ministry, separate ministry for the welfare of the tribals, for the empowerment of the tribals, ministry of tribal affairs। और ये संयोग ये है कि उस समय भी ज्वेलराम जी मंत्री थे, पहला ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अभी भी वही है और वो उड़ीसा से ही हैं। तो अटल जी और मोदी जी ये दोनों ही जो आई वुड से दे आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ट्राइबल्स। ठीक है, और सिर्फ उतना ही नहीं, इतने सारे जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स रहे, उनके बारे में कभी भी कोई आपके इतिहास की किताब में जिक्र नहीं। आप जिक्र होगा बस वही एक ही परिवार, ये नेहरू और उनके परिवार के बारे में, लेकिन इतने सारे महान फ्रीडम फाइटर्स ट्राइबल कम्युनिटी से आए। भगवान बिरसा मुंडा ले लीजिए, लक्ष्मण नायक ले लीजिए, रेंडो माझी ले लीजिए, तो ऐसे कई सारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी जिक्र ही नहीं थी। उनको लाइमलाइट में लाना, उनके लिए ट्राइबल म्यूजियम्स बनाना, फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, उनको किताबों में उनके बारे में बच्चे हमारे जो आगे की पीढ़ी जान सके इसकी प्रयास करना, ये सब मोदी जी ने किया है। तो फिर से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ ट्राइबल्स इश्यूज़ को लेके और उनके साथ काफ़ी काम करता हूँ। तो मैं पूरी आदिवासी समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। And the national integration projected by Vande Mataram is incomplete without our tribal brothers and sisters. Of course. Sir, before we end, I would like to ask you, request you to recite one single line from that omitted part. When we adopted the Vande Mataram song, we omitted 2 or 3 stanzas from that. So could you please recite a few lines from there? जी बिल्कुल, मैं वही स्टांजा रिसाइट करना चाहूँगा जहाँ पे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का जो उसमें जिक्र है। ठीक है, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वम। Right, sir. Thank you very much.